Hello. Hi guys, good evening. Can you guys hear me? All right, great. Sorry, I started a little late today. So, last class का एक बार quick recap ले लेते हैं. In fact, it was 22nd को ही था ना? हाँ. Right. So, as a quick recap, if you guys remember, we spoke about some of the additional results of kinetic theory of gases, in which I had asked you to remember these results, and along with these results, we also spoke about the real gases. Okay, so if you remember, real gas वाला जो part था, based on our discussion in the last class, जैसा मैंने आपको बताया था, we'll first elaborate on the experimental understanding, right? And then we'll develop the real gas equation, van der Waals equation in particularly, to help explain this experimental behavior, right? So if you remember what the experimental behavior was, a quick recap मैं आपको देना चाहूँगा. ठीक है, we'll start with the mathematical interpretation first, that PV is equal to nRT was something that was followed by an ideal gas. However, PV real is not equal to nRT. In order to get this equality, we substitute a variable here called as compressibility factor, Z, right? So you can read Z as PV real upon PV ideal, right? Now, based upon that result, we did discuss that how that deviation is for a real gas under different conditions. So we spoke about high pressure conditions in which we observed that the gas showed positive deviation. Z was more than 1. Under low pressure conditions, we observed that Z was less than 1. We called it negative deviation. And I related these concepts to the intermolecular forces that are there between real gas particles. So there were repulsive forces and there were
attractive forces. Under high pressure conditions, the repulsive forces were making the gas less compressible. The real gas less compressible, right? Keeping its Z more than 1. And in case of low pressure conditions, the real gas was more compressible, highlighted by Z being less than 1, right? So this was something which we also represented using this graph of Z versus P. Now, before I start, talking about the real gas equation, I just wanted to discuss one or two questions, which were based on this particular equation, PV is equal to Z and RT, right? So you have one question in front of you, okay? And because it is, highlighting that the compressibility factor in the question is given to you, based on that, you can, apply this equation quite simply. PV is equal to Z and RT. You substitute the values that are given to you, and accordingly, okay, from the first condition you get the moles, you substitute that in the second condition to get the answer. ठीक है? So ये एक बहुत ही simple सा question मैंने आपके सामने रखा है. So as to demonstrate the use of this PV is equal to Z and RT. ठीक है? This is not the van der Waal equation. This is, you can say, the experimental equation only, in which Z का value is something which is either given to you or would be asked from you. ठीक है? So based on this, ये वाला question आप लोगों को समझ में आया? Like pretty straightforward, nothing fancy. ठीक है? Any doubts in this? All right. Then let me ask you to try this question. ठीक है? ये question दिख रहा है सबको? Can you guys see the next question? All right. Try this one. Am I audible, guys? Can you guys hear me? हाँ, मतलब I think थोड़ा सा लैग रहेगा because for some reason आज इंटरनेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है. तो बीच में अगर लैग आएगा ना तो let me know. I will repeat or reiterate anything that was missed. ठीक है? एक बार ये क्वेश्चन पे वर्कआउट करो. तत्मेश, कौन से पार्ट का आंसर दिया तुमने? तुमने सीधे सी पार्ट का आंसर दे दिया. अच्छा, ठीक है. हाँ, मतलब आई थिंक या योर आंसर इज क्वाइट करेक्ट और ऑलमोस्ट करेक्ट, आई शुड से वेरी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर. ठीक है, बाकी पार्ट्स के भी आंसर ट्राई करो.
All right, so are you guys trying the ideal gas equation here? Because if you are trying that ideal gas equation, then definitely that's not going to work, because as you can see, the question is highlighting the fact that it is a real gas in front of you, right? So एक पहला intuition यहाँ से आ जाता है, like you might use the equation, if you remember, PM is equal to DRT, right? आप शायद ये वाला equation use कर लो, but ये equation ideal gas के लिए है, ठीक है? So should not use that equation. What you can rely upon is the data of effusion. Based on it, maybe you can give an attempt towards getting the density or the molecular weight of the vapor. हाँ राइट हार्दिक, पहले वाले का करेक्ट है. प्रथमेश तुमने अच्छा ग्राम पर मोल में दिया है कि केजी पर मोल में दिया है? इफ यू हैव गिवन इन केजी पर मोल देन इट इज करेक्ट, अदरवाइज ग्राम पर मोल में यू डोंट नीड 10 raised to the power of -3. हाँ ठीक है. हाँ राइट गुरुदेव, ठीक है. फर्स्ट पार्ट का आंसर करेक्ट है, ठीक है. सेकंड पार्ट में मोलर वॉल्यूम निकालना है, तो अगेन डोंट यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये गड़बड़ हो जाएगा फॉर द सेकंड पार्ट. कि प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है, 1 मोल डाल के आर और टी डाल दिया, वो भी मैच नहीं करेगा, ठीक है. हाँ राइट, सेकंड पार्ट का आंसर भी करेक्ट है प्रथमेश, गुड. तो मतलब यू आर practicing all your DPPs well, I think, because it's a good question. I do not expect many students to get the answer in this one. Right Hardik. हाँ ठीक है प्रथमेश. गुड गुड, ठीक है. तो बाकी लोगों को भी एक हिंट दे देता हूँ, like if you will try to work with the molecular weight, right, don't use PM is equal to DRT, that is going to lead to an incorrect answer, because the formula is applicable for real gas, no sorry, ideal gas, not real gas, right? So we use the rate of effusion wala discussion, that rate of effusion यहाँ पे दिया हुआ है, that under identical conditions. अब identical conditions दिया हुआ है, तो right hand side पर I'll still only take molecular weight as the factor, and then if I use it, I'll simply get my answer as molecular weight is equal to 18 gram per mole. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट पार्ट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एप्लीकेशन ऑफ ग्राम्स लॉ, ठीक है. हाँ राइट प्रथमेश, करेक्ट. ऑलराइट, देन सेकंड पार्ट पे मैं आता हूँ. मोलर वॉल्यूम के लिए अब आपको यहाँ पे नोटिस करना, अगेन डोंट यूज PVM is equal to nRT, right? PV is equal to nRT नहीं यूज करना, because this is again an ideal gas equation. यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, डेंसिटी का जो डेटा है उसको यूज करूँगा. That density is given to me as 0.36 kg per meter cube. So what does this mean? I can read this as 360 gram occupies 1000 liters, right? Because kg per meter cube को मैं ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करूँगा. So 0.36 kg is 360 grams and 1 meter cube is 1000 liter, right? So 360 grams is occupying 1000 liters. Then 1 mole, that is 18 grams, would occupy how much? ठीक है.
ये जो मैंने यहाँ पे लगाया ये तो सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट? तो इसमें रियल गैस हो आइडियल गैस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ यूनिटरी मेथड वर्क्स फॉर ऑल सब्सटेंसेस, राइट? सो बेस्ड ऑन दिस I will be able to get my answer that the molar volume is 50 liters. Right? ये सेकंड वाला पार्ट समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एक बार जूम आउट कर देता हूँ. Does anyone have doubt in the second part? All right. Then what about the next one? यहाँ पर अब आपको z का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो z का भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, that it is PV real upon PV ideal, right? And like if we apply the ideal gas equation, the volume that we would have got is equal to nRT by V. Okay, that is the volume which we would have got by applying the ideal gas equation. And real gas का volume हम लोगों ने अभी just पिछले part में निकाला है. So based on that calculation, we get the value of Z as 1.22. ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? Now अगर Z 1.22 है, तो which kind of forces are dominant, attractive or repulsive? Based on our understanding from the last class, which is the dominant force? हाँ, ये इसका आंसर सबको याद है क्योंकि दिस वाज अ सिंपल सब्जेक्टिव वन दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास. So yeah, correct. Repulsive forces would be dominant because Z is greater than 1. Had Z been less than 1, then we would have said the attractive forces were dominant. अच्छा, then the last part, the fifth part of the question, ठीक है, और you can see यहाँ पे ऐसे B करके लिखा हुआ है, in which they are saying that assuming vapor behaves ideally at 1000 Kelvin, ठीक है, then it is asking to for you to determine the average translational kinetic energy of a molecule. Now, this average translational kinetic energy of molecule would be based upon our equation 3 by 2 kBT, right? So, coming back, यहाँ पर आप notice करना, we have the average translational kinetic energy as 3 by 2 kBT. ठीक है? हाँ, मैंने exact value तो calculate नहीं करा है, but yes, you have the formula because per molecule level पे calculate करने के लिए बोला हुआ है. ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? So this was a question which was of a real gas question, however not dependent upon any of the van der Waals equations or detailed discussions which we are going to now study, but simply based upon the fact that we write real gas behavior in terms of the compressibility factor, that is PV is equal to ZnRT, right? Okay, ठीक है. Now, इसमें किसी को कुछ डाउट है in this particular question? Otherwise, I would want to move on to the next topic, which is, as I said, van der Waals equation. Is this clear with everyone? अच्छा, अभी भी वॉइस क्रैक हो रहा है, or is it something better? Okay, let me see. Okay, is it better now or is it still cracking? Okay, ठीक है. हाँ, वो थोड़ा सा आज नेट का इशू है. Okay.
ठीक है, अभी आ रहा है, अभी इज इट ओके? लेट मी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे फोकस करना। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई स्पोक विद यू इन द लास्ट क्लास, दैट हम लोग रियल गैस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, एंड वन सच इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन इज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, नाउ हाउ, अभी अपना फोकस क्या रहेगा? ठीक है, अपना फोकस रहेगा फर्स्ट टू क्रिएट वॉन डर वॉल इक्वेशन। ठीक है, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट वॉन डर वॉल इक्वेशन, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, वी आर गोइंग टू मॉडिफाई आइडियल गैस इक्वेशन, and basis that modification, that van der Waal equation, that modified equation should be able to explain the experimental behavior that we discussed in the last class. ठीक है, so यहाँ पे notice करना, the statement goes in the following manner, that by removing the ideal gas assumptions, will modify the ideal gas equation to predict real gas behavior. ठीक है, अभी मॉडिफिकेशन किस तरीके से होगा यहाँ पे नोटिस करना, PV ideal is equal to nRT, but PV real was not equal to nRT. So what we are going to do is we are going to correct the left hand side such that PV corrected becomes equal to nRT. ठीक है, and what is this correction that we are talking about? ठीक है, ये ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा, एंड इसमें मैं पहले से ही आपको ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मुझे एटलीस्ट 4 या 5 बार वापस आकर इसको आपको रेफर करके बताना पड़ेगा, तभी यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस करेक्शन। ठीक है, तो पेशेंस रखना while we are going to discuss these corrections, you might get stuck कि समझ में नहीं आया, so I am going to kind of go back and help you understand these corrections once we get a basic understanding, तो वापस इस पर आएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है, these corrections shall be done such that if real gas behaved like an ideal gas. ठीक है, तो यहाँ पर what I'm trying to say is PV रियल जो है वो nRT के बराबर नहीं है। ठीक है, बट अगर ये रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रहा होता, ठीक है, then what corrections can I do on the left hand side such that this equation PV corrected becomes equal to nRT. ठीक है, तो इसमें what we will do is we'll break it down into two parts, एक प्रेशर करेक्शन और एक वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, P और V दोनों टर्म्स को हमें करेक्ट करना है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं into two parts. We'll talk about pressure correction and volume correction. सबसे पहले मैं वॉल्यूम करेक्शन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ध्यान से नोटिस करना। Now as a quick question, ठीक है, in the ideal gas equation V क्या represent करता था? What did V represent? Any clues? If you would have listened to my first lecture quite carefully and written the notes by yourself, शायद you will be able to answer. शुभम ने दिया है आंसर, ओके, वेल एक और आंसर सोचो शुभम। I have a more technical answer to this. What did V represent? शुभम ने बोला है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, यश ने भी बोला है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इन विच द गैस इज प्रेजेंट। हर्ष ने भी बोला है वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। ओके, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है, मतलब करेक्ट भी है बट इट इज नॉट द मोस्ट फंडामेंटल वन विच आई एम लुकिंग एट।
ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, दिस वाज एक्चुअली द करेक्ट definition of V in the ideal gas equation. V represented volume available for free movement of gaseous molecules. Now, हमने अब आइडियल गैस में assumption क्या लिया था, that कंटेनर के अंदर, ठीक है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है. हमने ये assumption लिया था आइडियल गैस के लिए कि as compared to the size of the vessel, the actual size, the actual particles का size is negligible. तो पूरा volume का vessel was something that was available for free movement, and that is what we kept our value in the ideal gas equation as. Okay, that V is the volume available for free movement, that is the volume of the container. ठीक है, बट अब जब हम आइडियल गैस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से नोट, सॉरी, रियल गैस का डिस्कशन कर रहे हैं, देन वी विल नॉट टेक दैट assumption, we will remove that assumption. ठीक है, what we are going to say that we consider the actual size or volume of the gas particles to be significant and do not neglect them with respect to the volume of vessel. ठीक है, what we are saying is that we consider the actual size और वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स, ये हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से अब नोटिस करना, व्हेन आई विल से दैट वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस समथिंग, राइट? यहां तक का पार्ट समझ में आया? दैट वॉल्यूम नाउ अवेलेबल फॉर मूवमेंट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिस्टम माइनस समथिंग. ठीक है, दैट इज व्हाट द corrected volume would be. Okay, now any guesses to what this something would be? Any guesswork? What would you like to put here as something? Okay, नहीं यश, आपने तो पता नहीं क्या Z कहाँ से आ जाएगा. शिवांक ने बोला है गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम डाल दो. हार्दिक ने भी वही बोला है कि जो एक्चुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम डाल दो. हाँ, प्रथमेश का भी यही रेस्पॉन्स है. So okay, very good. This is a very good first guess. ठीक है, the first guess that comes is that I should just individual जो particles हैं, ठीक है, उन particles का volume calculate करूँ. ठीक है, so let's say if you have if you have n moles of gas, right, so n divided by or n multiplied by Avogadro's number. ठीक है, अगर 1 मोल गैस है, ठीक है, तो यू कैन से Na मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है, और हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, अज्यूमिंग स्फेरिकल. ठीक है, एंड आर इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन पुट हियर एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. ठीक है, so this is a good first guess. However, ठीक है, there is a better guess that is available. ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन को पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है, when you will refer to the books, ठीक है, एक बेटर एस्टिमेट ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकल के आता है. ठीक है, एंड नोटिस करना, ठीक है, वो कैलकुलेशन किस तरीके से रहेगा. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव ये जो समथिंग मैंने बोला यहाँ पर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसको हम लोग स्मॉल बी इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इनिशियल गैस आपका रहेगा, लेट्स से अगर 1 मोल गैस है तो Na into 4/3 पाई आर क्यूब. हाउएवर देयर इज अ बेटर गैस दैट इज अवेलेबल, एंड दैट बेटर गैस इज हाफ into Na into 4/3 पाई into 2r का क्यूब. ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ बेटर गेस. नाउ कहाँ से आया ये, व्हाई इज इट बेटर?
ये अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। व्हेन अ गैस पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ वेसल है, ठीक है, व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज ये वेसल है, उसके अंदर गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कब हिंडर होता है, ठीक है, माय क्वेश्चन इज व्हेन डज द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल गेट हिंडर्ड, ठीक है, फ्री मूवमेंट चाहिए हमें मॉलिक्यूल का, तो उसका मूवमेंट हिंडर कब हो रहा है, हाँ राइट, हर्ष ने करेक्ट आंसर दिया। बाकी लोगों का गेस, मूवमेंट कब हिंडर होता है एक मॉलिक्यूल का, हिंडर का मतलब समझ में आता है ना, आई होप दैट इट इज ब्लॉक्ड और इट इज नॉट फ्री। हाँ राइट शिवांक, राइट यश, राइट ध्रुवा, राइट, जब कोलिजन्स हो रहते हैं, ठीक है, हाँ राइट आस्था, राइट सानिका, ठीक है, व्हेन देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, बेसिकली सेइंग दैट व्हेन देयर इज अ collision, correct? So when there will be a collision, we can understand that the movement would be restricted, ठीक है। so यहाँ पर notice करो, during collision with other molecules, ठीक है, the movement gets restricted, ठीक है। collision with walls भी रहेगा, ठीक है, एक wall के साथ में भी अभी, अच्छा ठीक है, अभी आ रही है आवाज, इज इट बेटर नाउ? अच्छा ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इज इट स्टिल क्रैकिंग और इज इट बेटर नाउ? Okay, it is still cracking. Okay, let me see if I can. All right. अभी बेटर है? Is it coming clearly now? Okay, ठीक है। So yeah, as I was explaining, ध्यान से notice करना. When does the movement of a molecule gets hindered? तो यहाँ पे notice करना that during collision, ठीक है, with other molecules, that is when the movement of the particle gets hindered, ठीक है। Collision with walls में भी hindered होगा, ठीक है, but collision with walls is not something which we are going to talk about a hindrance, because already हम लोग जो फ्री मूवमेंट की बात कर रहे हैं वो इनसाइड द वेसल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो collision with walls is not something which we are trying to consider as something that hinders the movement, ठीक है। तो collisions जो यहाँ पर internally between molecules हो रहे हैं। now last class में इनफैक्ट जब हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था दैट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दो, हाँ सॉरी, अभी बीच में आई थिंक थोड़ा सा वॉइस फिर से क्रैक हो गया था। इज इट बेटर नाउ? कैन यू गाइस हियर मी नाउ? हाँ, सो एज आई वाज सेइंग दैट कोलिजन्स हम लोगों ने बायोमोलिकुलर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर मतलब तीन मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, टेट्रा मॉलिक्यूलर मतलब फोर मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ आउट ऑफ ऑल द कोलिजन्स दैट हैपन इनसाइड, 99.9% collisions are bimolecular only, ठीक है। The probability of 3 or more atoms colliding simultaneously is very very less, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हिंडर हो रहा है, ठीक है, वो प्राइमरीली किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की वजह से, ठीक है। अब नोटिस करना, व्हेन अ कोलिजन हैपेंस, ठीक है, देन हाउ इज द मूवमेंट गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ,
ठीक है, तो इट इज फ्री टू मूव, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट इन ऑल द डायरेक्शंस, इट इज फ्री मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हिंडर नहीं हो रहा। ठीक है, बट यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ कोलिजन, एक एटम दूसरा एटम आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, अज्यूमिंग दीज टू बी स्फेरिकल। ठीक है, ये एक एटम और दूसरा एटम, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर 2r से कम हो जाएगा, देन वी विल कंसिडर दैट एज अ कोलिजन, राइट। तो ये जो डैश्ड रीजन है, ठीक है, ये नोटिस करना, ये 2r रेडियस का डैश रीजन है। तो अगर किसी दूसरे एटम का सेंटर, ठीक है, व्हेन द सेंटर ऑफ अनदर एटम, ठीक है, फॉल्स इनसाइड दिस डैश रीजन, विल कंसिडर इट अ कोलिजन। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी दैट ड्यूरिंग कोलिजन द मूवमेंट इज हिंडर्ड। ठीक है, ये मॉलिक्यूल, लाइक ये दोनों मॉलिक्यूल, ठीक है, इनके साथ, इनके बारे में सोचोगे आप, तो इनका मूवमेंट अब रेस्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है, लाइक दे कैन गो इन सम डायरेक्शंस, बट इन दिस डायरेक्शन जहां पर ये मीटअप कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इनका मूवमेंट हिंडर हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना, ये जो डैश्ड रीजन मैंने लिखा, ठीक है, दिस डैश्ड रीजन इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। किसके लिए नोटिस करना यहाँ पर, फॉर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने यहाँ पर डैश रीजन हाईलाइट करा, ठीक है, दिस डैश डैश रीजन, this is excluded volume for a pair of molecules, because when this pair comes and collides, right, this region becomes restricted. ठीक है, this region becomes restricted towards movement. ठीक है, तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये कितना रहेगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर पेयर, इट विल बी 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब। ठीक है, और अगर मैं ये पेयर के लिए पर मॉलिक्यूल में निकालना चाह रहा हूँ इसको, तो आई जस्ट सिंपली डिवाइड बाय 2, सो हाफ इंटू 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब। ठीक है, एंड अगर मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, ठीक है, इफ आई हैव 1 मोल सब्सटेंस, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय entire value by Na, Avogadro's constant. So I'll get the average excluded volume per mole. ठीक है, which will be half into 4/3 pi into 2r का cube into Na. ठीक है, and thus my V corrected क्या है, that is the volume available for free movement will be volume of the system V minus N into B, where N will be the moles of gas and B is the excluded volume per mole of the gas. ठीक है, तो ये आपको वॉल्यूम करेक्शन समझ में आया। ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन अगेन रीरीड द कैलकुलेशंस ऑफ हाउ वी डिड द वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, पहले मैं एक बार दोबारा रीआइटरेट कर देता हूँ दैट व्हाई और हाउ वी टॉक्ड अबाउट द वॉल्यूम करेक्शन। यहाँ पे नोटिस करना, मैं वापस से रीआइटरेट कर रहा हूँ, दीज करेक्शंस शैल बी डन सच दैट इफ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए, ठीक है, ये V क्या होता था, आइडियल गैस के लिए V होता था वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। ठीक है, तो मेरे पास अगर एक एक्चुअल रियल गैस रखा हुआ है इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V, तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन का V क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन का V वुड बी द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। ठीक है, so volume available for free movement will be, as you can understand, volume of the system minus something, and that something is what we calculated based on collisions, because collisions are when the volume gets hindered. ठीक है, all right, now अब इसमें हर्ष ने डेफिनेटली रिप्रेजेंट करा है। सो हर्ष का एक डाउट आ रहा है, हर्ष इज सेइंग सर वॉल्यूम टू बी एक्सक्लूडेड should also depend upon collision frequency. Well, यहाँ पर नोटिस करना हर्ष, ठीक है, what I am trying to say
is not in terms of time. ठीक है, collision frequency जो होता है, collision frequency, it talks about the number of collisions, the bimolecular collisions happening per unit time, ठीक है, for a given molecule. ठीक है, एक given molecule कितने collisions कर रहा है in a given amount of time. ठीक है, in a given amount of time, that is 1 second. ठीक है, यहाँ पर मैं टाइम का फैक्टर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि जब आइडियल गैस के बारे में हम लोग बात करते थे, आइडियल गैस के बारे में, ठीक है, जब इंटायर वॉल्यूम था सिस्टम का, दैट वाज समथिंग विच वाज अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. ठीक है, बट रियल गैस में बिकॉज ऑफ द एक्चुअल साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, द इंटायर वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. ठीक है, नाउ इनिशियल गैस, सिंपलेस्ट गैस कुड बी कि यू रिमूव द पार्टिकल्स का साइज देमसेल्व्स. ठीक है, however I am saying that there is a better guess to it, which is based on the collisions that will be happening between molecules. ठीक है, so because of that, what I am saying is that overall volume, ठीक है, overall volume में से there is some part that is to be excluded. ठीक है, now हाँ, अब इसमें अब दिशा का डाउट देखना. दिशा का डाउट आया है. शी इज सेइंग दैट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द डैश्ड रीजन इज वॉल्यूम हिंडर्ड, बिकॉज व्हाई कांट द मॉलिक्यूल ऑन द लेफ्ट मूव टू द लेफ्ट. ठीक है, नाउ दैट इज व्हाट आई मेंट बाय फ्री मूवमेंट वर्सेस हिंडर्ड मूवमेंट. ठीक है, दिशा यहाँ पे ध्यान से सुनना. फ्री मूवमेंट का मतलब होगा दैट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, इन एनी डायरेक्शन व्हाटसोएवर. ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय फ्री मूवमेंट. अगर कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, किसी भी एक डायरेक्शन में भी रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज हिंडर्ड मूवमेंट. तो यहाँ पर इवन एक इस डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन आ गया, दिस इज हिंडर्ड मूवमेंट. ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट इस डैश्ड रीजन में, ठीक है, अगर कभी भी कोई दूसरा एटम आ जाएगा, ठीक है, देन द मूवमेंट विल बिकम हिंडर्ड, because that will become a case of collision. ठीक है, हाँ. सो नाउ हार्दिक का डाउट और हर्ष का डाउट एक्चुअली सेम लाइंस पर है. हार्दिक का डाउट है दैट एट अ टाइम नॉट एवरी मॉलिक्यूल इज इन कोलिजन. ठीक है, सो व्हाई आर वी taking this or multiplying this by all the molecules. Right. हाँ, एक एक करके. अभी आ रही है आवाज क्लियर? Is it still lagging or is it better now? Okay. So yeah, as I was saying that यहाँ पर हार्दिक का भी यही डाउट है. ठीक है, हार्दिक का डाउट क्या है दैट every molecule is not in the collision at the same time. ठीक है, then why are we kind of multiplying this by Na? ठीक है, all molecules के लिए क्यों हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, यहाँ पर ये अजम्पशन जा ही नहीं रहा है दैट ऑल मॉलिक्यूल्स आर अंडर कोलिजन. ठीक है, ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, इवन इफ आई स्टार्टेड विद माय इनिशियल गेस, ठीक है, ये अगर मेरा इनिशियल गेस रहता, ठीक है, तो ये इनिशियल गेस का मतलब क्या था कि आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम, ठीक है, आप एक एक पार्टिकल का वॉल्यूम एड अप करते जाओ. ठीक है, एंड यू कॉल दैट एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. राइट, नाउ दैट डज नॉट मीन कि दिस पर्टिकुलर रीजन इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल आज यहाँ पर है, कल को यहाँ से हट गया. ठीक है, कल को ये यहाँ पर आ गया, तो ये रीजन तो हो गया ना अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. वैसे नहीं सोचना है. ठीक है, समझ में आया तुम्हें हार्दिक? ठीक है, एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं सोचने के लिए बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि एज अ होल, एज अ कलेक्शन, ठीक है, देयर इज दिस रेस्ट्रिक्शन दैट कम्स टू फ्री मूवमेंट. एंड उसका बेटर गेस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ
how the or when the movement gets hindered, which is during a collision. ठीक है. अच्छा, फिर रुद्र का भी डाउट है, what if 3 molecules collide simultaneously. ठीक है. So you are right रुद्र कि हम लोगों को ये भी केस लेना चाहिए कि 3 molecules साथ में collide करें. However, the probability of 3 molecules colliding simultaneously is very very less. ठीक है. So we don't really bother much about it. ठीक है. And मैंने आपको पहले बताया कि van der Waals equation is not the most perfect equation. ठीक है. This is in fact, as I said in the beginning also, कि ये starting process है towards understanding how real gases can be modeled, how they can be written an equation for. ठीक है. So कल को you will find equations which are better than van der Waals equation, and they would be better if we take such different considerations into account. ठीक है. कुछ और improvisations करेंगे तो उससे we will be able to improve van der Waals equation. ठीक है. However, at this point in time I will be not getting into the improvisation of van der Waals equation. ठीक है. I'm sure आप लोगों को कुछ innovative thoughts आ रहे होंगे. ठीक है. That ये भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. It might improve van der Waals equation, which are good thoughts, which are actually the right way of thinking about it. However, I am just going to keep myself restricted to the syllabus right now, because इसके ऊपर भी ठीक है और अच्छी equations होती हैं. पेंग रॉबिन्सन equation जो होती है van der Waals equation जैसी दिखती है with slight modifications. ठीक है. So we'll focus on van der Waals equation right now. ठीक है. हाँ, यश 2r इसलिए लिया because it is the distance between these two atoms का center. ठीक है. Alright. So आपको ये volume correction वाला part समझ में आया. ठीक है. So we have written now volume correction is V minus NB. ठीक है. This is the volume that is available for free movement, and B का result ये मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है. Now let's move on to pressure correction. ठीक है. ध्यान से फोकस करना. अब मैं प्रेशर करेक्शन के ऊपर बात करने जाऊंगा. एंड प्रेशर करेक्शन थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है. ठीक है. ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है इनफैक्ट आई वुड से. So try and understand pressure correction in a better manner, in a more detailed manner. ठीक है. So observe करना. In real gas, ठीक है, there exist attractive forces between molecules. ठीक है. This is the assumption that is right now which van der Waals equation start with. ठीक है. Although मैंने आप लोगों को repulsive forces के बारे में भी बताया था as part of our experimental understanding कि real gas के molecules के बीच में attractive forces as well as repulsive forces दोनों होंगे. पर ध्यान से सुनना. ठीक है. Please pay attention. अभी जब मैं van der Waals equation को start करूंगा I will be only talking about attractive forces to begin with. ठीक है. And repulsive forces अपने आप फीचर होंगे. ठीक है. In some way which I'll talk about a little later. ठीक है. Right now I am going to talk about only attractive forces. ठीक है. Repulsive forces actually कब फीचर करते हैं? When the gas is under very high pressure conditions. If you remember this from the last class. ठीक है. कहाँ गया? हाँ, ये वाला. तो repulsive features, repulsive forces ये ऐसे high pressure region में ही dominate करते हैं. ठीक है. What do I mean by this high pressure? ठीक है. ये high pressure if you ask me values, ठीक है, तो ये 700 800 ATM. ठीक है. at least 500 ATM तो होगा ही सही. ठीक है. that is what is meant by the high pressure region. ठीक है. तो यहाँ पर अभी मैं हाई प्रेशर रीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है. 0 से 100 200 300 ATM. ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग एज लो प्रेशर ओनली. ठीक है. दिस इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच हम लोग रियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर कमिंग बैक. ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर करेक्शन इन रियल गैस व्हाट वी आर सेइंग इज दैट देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है. and as a result of these attractive forces, ठीक है, notice करना, as a result of these attractive forces what happens is that the real gas exerts lesser pressure
than what it would have exerted if there were no attractive forces. ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोटिस करना, ये एक रियल गैस है यहाँ पर, ठीक है, इनसाइड दिस वेसल, एंड दिस रियल गैस इज समथिंग व्हिच इज जस्ट अ मोमेंट गाइस, ठीक है, एंड दिस रियल गैस इज समथिंग व्हिच इज यू नो एक वेसल में रखा हुआ है और हमने यहाँ पे मैनोमीटर लगा दिया है, ठीक है, ये मैनोमीटर जो हमने लगा दिया है इससे हमें एक प्रेशर का ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज दैट प्रेशर, दैट इज द एक्चुअल प्रेशर, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, और यू कैन से द रियल प्रेशर, ठीक है, जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। नाउ नोटिस करना, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गायब हो जाए, ठीक है, दैट इज टू से इफ द गैस वाज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस सब गायब हो जाए, ठीक है, देन द corrected pressure would be more than what the real gas is exerting, ठीक है, तो अगर ये गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा होता, राइट, देन इट वुड हैव exerted more pressure. तो जो करेक्टेड प्रेशर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज P real plus something, ठीक है, I will let you think on it for a minute and then try to re-explain, ठीक है, एक बार आप लोग सोचो इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर, हाँ राइट, तो यहाँ पर क्या है, नोटिस करना, वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। यू हैव अ रियल गैस, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड दिस वेसल। अब ये रियल गैस क्या हो रही है, ये रियल गैस कोलाइड कर रही है विद द वेसल, ठीक है, द पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद द वेसल एंड उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट इसलिए होता है ना, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द वेसल, ठीक है, फोर्स लगता है, मोमेंटम चेंज होता है, उसकी वजह से फोर्स लगता है एंड प्रेशर आता है। अब मैंने ये मेजर कैसे करा, मैनोमीटर लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रेशर मुझे मिल रहा है उसको मैं पी एक्चुअल, पी ऑब्जर्व या पी रियल बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल प्रेशर विच आई एम ऑब्जर्विंग, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ दिस गैस वाज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है, तो क्या हो रहा होता कि ये जो पार्टिकल वॉल के साथ में कोलाइड करने वाला है, ठीक है, it would have struck the wall with a greater force if no attractive forces were present. रियल गैस में तो कैसा होता है, रियल गैस में ये अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से, ठीक है, ये जो फोर्स यहाँ वॉल के ऊपर लगने वाला है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। बट अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ कि ये फोर्सेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, देन ज़्यादा फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा मोमेंटम से कोलिजन होगा, and because of that you will find that the pressure exerted, ठीक है, if the gas was behaving like an ideal gas would have been more, ठीक है, so P corrected I will write it as P real, जो कि मेरा एक्चुअल रियल गैस का प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है, प्लस समथिंग, ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वापस से नोटिस करना that I am writing it in this manner because of the way in which I have decided to do the corrections. So if you remember, मैं वापस से इसलिए यहाँ पर रिकैप करता हूँ, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, these corrections, ठीक है, my bad, oops, these corrections I am doing in such a way कि अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा होता, तो what I should have written as P, what I should have written as V, ठीक है, नोटिस करना ये, तो अगर मैं एक रियल गैस को आइडियल गैस की तरह
ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस, ठीक है, जो रियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, अगर यही गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लग जाती तो ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो आई हैव टू राइट P करेक्टेड एज P रियल प्लस समथिंग, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यहाँ पर नोटिस करना how I have written that if the gas was behaving like an ideal gas, the P corrected is P real, जो कि हम observe कर रहे हैं, plus something, ठीक है। Why have I added it over here? Because if these forces were not present, then the molecules would have struck with a greater momentum, greater force, ठीक है। तो I hope आपको ये चीज समझ में आई है, ठीक है। Why V corrected, ठीक है, मैं एक बार कोई recap दे देता हूँ, ठीक है। I hope you remember that हम लोगों ने V corrected लिखा था, ठीक है, V minus something, right? Why we had written this? Because our definition of volume for an ideal gas, ठीक है, was the volume available for free movement, ठीक है। तो ये जो रियल गैस था, if this was behaving like an ideal gas, तो उसके लिए कितना वॉल्यूम, ठीक है, फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल होता? इट वुड हैव बीन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट P करेक्टेड, ठीक है, P करेक्टेड इज P रियल, ठीक है, जो एक्चुअल प्रेशर गैस एक्सर्ट कर रही है, प्लस समथिंग होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये गैस के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, ये गैस के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, if we are going to neglect them, if we are going to assume this gas to be behaving like an ideal gas, then it would have exerted more pressure, ठीक है। all right, now अब हम, जैसे हम लोगों ने वॉल्यूम के टाइम पे समथिंग का कैलकुलेशन करा था, वैसे अब हम लोग यहाँ पर प्रेशर करेक्शन के भी समथिंग का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना दिस प्रेशर करेक्शन फॉर अ गिवन कोलिजन डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। कितना और कैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस थे विच वर एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना that this pressure correction for a given collision, ठीक है, depends on the number of molecules per unit volume that are going to attract this colliding molecule, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना, ये प्रेशर करेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये प्रेशर करेक्शन कैसे आ रहा है? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे तो वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो रहेगा कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। दूसरा रहेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली नेबरहुड में रहेंगे, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज कोलाइडिंग, ठीक है। अगर यहाँ पर आप नोटिस करो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद अ कंपैरिजन, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे नोटिस करना दोनों केस में n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, टोटल n मॉलिक्यूल्स है दोनों केस में, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे वॉल्यूम छोटा है, ठीक है, इन दिस फर्स्ट केस वॉल्यूम छोटा है। तो ये जो मेरा कोलाइडिंग वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल है, उसकी विसिनिटी में ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। वेयरएज यहाँ पर, ठीक है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है टोटल, अभी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है उसकी विसिनिटी में कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स would be more spread around. My number of molecules per unit volume से अगर ये डबल वॉल्यूम का था तो इसकी विसिनिटी में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम हो जाएंगे, है कि नहीं? So that is what I am saying, that the pressure correction for a given collision, ठीक है, depends upon number of molecules per unit volume that are going to attract the colliding molecule, ठीक है। तो colliding molecule को कितने neighboring molecules attract कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ ये तो मैंने किसके बारे में बात करा, यहाँ पर आप नोटिस करना एक कोलिजन के बारे में, दिस वाज फॉर अ पर्टिकुलर कोलिजन, ठीक है। बट जब हम प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे, व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेशर मेजरमेंट, तो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन कोलिजन, ठीक है, इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ ऑल द कोलिजन्स दैट आर हैपनिंग पर यूनिट टाइम, राइट। सो द ओवरऑल प्रेशर करेक्शन वुड बी बिकॉज ऑफ
ऑल सच कोलिजन्स, ठीक है, पर यूनिट टाइम। एंड ये जो कोलिजन्स रहेंगे वॉल के साथ में, ठीक है, सिर्फ एक कोलिजन के ऊपर फोकस नहीं करा ना, सारे कोलिजन के ऊपर फोकस करना है। एंड ये जो कोलिजन्स रहेंगे ये भी n/v के प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू n/v, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप नोटिस करना, ठीक है, एज अ क्विक recap to pressure correction, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, जो P करेक्टेड रहेगा दैट विल बी P रियल प्लस समथिंग। ये जो समथिंग है इसको हम प्रेशर करेक्शन बोल रहे हैं। ये प्रेशर करेक्शन विल बी बिकॉज ऑफ व्हाट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट आर देयर बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, ठीक है, दैट इज नंबर वन फैक्टर। नाउ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग the colliding molecule, that's the second factor, and how many such collisions are happening, ठीक है। okay, अभी भी क्रैक हो रही है क्या आवाज, or is it something better? Is it better now? Can you guys hear me better now? My bad, ठीक है। So what I was talking about was, हाँ, that ये तीन फैक्टर्स जो रहेंगे ये मिलकर हमारा प्रेशर करेक्शन बनाते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कितना अट्रैक्ट करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। दूसरा फैक्टर रहेगा कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग अ गिवन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड तीसरा फैक्टर रहेगा हाउ मेनी सच कोलिजन्स आर हैपनिंग, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इन तीनों को मैं कंबाइन करूंगा। ये पहला वाले फैक्टर को, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसको हम कैप्चर करते हैं विद ए, ठीक है, दैट इज द फैक्टर विद विच वी कैप्चर देम, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज ए, ठीक है। देन दूसरा जो फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट एक गिवन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के अराउंड, उसकी विसिनिटी में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज सिंपली n/v, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन द वॉल्यूम दैट इज देयर, ठीक है। एंड द तीसरा फैक्टर है विच इज द कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट आर हैपनिंग विद द वॉल, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन n/v, ठीक है। तो ये प्रेशर करेक्शन को वी रिप्रेजेंट विद दिस टर्म कॉल्ड एज a(n²/v²), ठीक है। P, the pressure correction, is a(n²/v²), where a is a van der Waal parameter that represents attractive forces between gases, ठीक है। n is the moles and v is the volume of the vessel itself, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, as I said, a is the van der Waal parameter which relates to the intermolecular force of attraction, and n/v will be the number of moles per unit volume. So जो P corrected रहेगा मेरा, ठीक है, that we write as the actual pressure which is measured plus a(n²/v²), ठीक है। And then if we take both these corrections together, P corrected and V corrected, okay, let me zoom in. If we take both these corrections together, P corrected and V corrected, what we get is the van der Waals equation, ठीक है। हाँ, कौन सा इक्वेशन कह रहे हो गुरुदेव? विच इक्वेशन इन पर्टिकुलर? प्रेशर करेक्शन वाला ना। मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ प्रेशर करेक्शन का, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना, ये प्रेशर करेक्शन के मैंने 3 फैक्टर्स डिस्क्राइब करे आपके सामने। सो ये जो कोलिजन है जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है, आई एम आस्किंग यू टू फोकस ऑन दैट, ठीक है। नाउ ये जब कोलिजन करने वाला है पार्टिकल, ठीक है, कोलिजन करने के पहले इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस जो रहेंगे दूसरे पार्टिकल्स के साथ में, दे विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स फोर्स, इट्स मोमेंटम व्हाइल कोलाइडिंग, ठीक है। तो प्रेशर करेक्शन में मैंने ये एक फैक्टर ए डाल दिया विच इज एन इंडिकेटिव ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैसेस, ठीक है।
ये जो A रहेगा ना, ये गैस के टाइप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेट्स से अमोनिया गैस है, उसका A ज्यादा रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू से नाइट्रोजन गैस, ठीक है। सो दैट इज समथिंग टू डू विद द टाइप ऑफ गैस दैट इज देयर, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन दूसरा मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो प्रेशर करेक्शन आया वो किस वजह से आ रहा है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कितने मॉलिक्यूल्स हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो उसकी विसिनिटी में रहेंगे, एंड हाउ टू गेस द विसिनिटी मॉलिक्यूल्स, द बेस्ट गेस वुड बी to talk about the density of molecules, that is number of molecules per unit volume, ठीक है। and then as a final guess you have you know एक सिर्फ एक कोलिजन के ऊपर फोकस नहीं करना ना, यू हैव टू फोकस ऑन मल्टीपल कोलिजन्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन अ वॉल, उसी से प्रेशर आता है। तो हाउ मेनी कोलिजन्स हैपन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज गिवन बाय, और दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू n by v, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये प्रेशर करेक्शन बना, ठीक है। P is equal to a n square upon v square, ठीक है। and as I said that P corrected is equal to P plus a n square upon v square, ठीक है, जो एक्चुअल प्रेशर है प्लस करेक्टेड प्रेशर, ठीक है। ऑल राइट, नाउ अब ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस डेरिवेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है, ये मैंने काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में जाके आप लोगों को ये डेरिवेशन बताया है, समझाया है, ठीक है, so as to give you a conceptual understanding, ठीक है। however what I have seen is that many a time students are kind of not much comfortable with the derivation, ठीक है। there are some students जिनको derivation समझ में आता है and they are able to appreciate the derivation also, however there are many students who are not able to be quite comfortable with the derivation, ठीक है। तो उनके लिए मेरा एडवाइस क्या रहेगा, ठीक है, आप मत जाओ, ठीक है, डोंट गो इनटू द डेरिवेशन कि ये वॉल्यूम करेक्शन कैसे आया, ठीक है, ये प्रेशर करेक्शन कैसे आया, ठीक है, डोंट गो इनटू दैट डिटेल, जस्ट रिमेंबर, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन, ठीक है, विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, जस्ट रिमेंबर इतना पार्ट दैट वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है, कम्स फ्रॉम करेक्टिंग द प्रेशर एंड द वॉल्यूम टर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, इतना स्टेटमेंट ध्यान रखना that van der Waal equation comes from correcting the pressure and the volume terms in ideal gas equation, and these corrections are done in such a manner that if the real gas was to behave like an ideal gas, okay, then what we should write on the left hand side as P and left hand side as P corrected and V corrected, ठीक है। और ये आप रिजल्ट ध्यान में रख लो, ठीक है, that van der Waal equation is P plus a n square upon v square, this is your corrected pressure, and V minus nb, this is your corrected volume, that is equal to nRT, ठीक है। ये P क्या रहेगा, P is the actual pressure, ठीक है, ध्यान से फोकस करना है एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन है। P क्या रहेगा, P is the actual pressure जो कि हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे होंगे। V क्या रहेगा, V will be the volume of the vessel, volume of the container in which the gas is present, ठीक है। N is the moles, R is the gas constant, T is the temperature, ठीक है। a n square by v square is the pressure correction and nb is the volume correction. Just understand the terms which are there in this particular equation, ठीक है। हाँ, आज तक आपको समझ में आया, P is the real pressure, that is the actual pressure, ठीक है, which we are measuring. V is the volume of the vessel, ठीक है। This a n square by v square is the pressure correction that we have done, ठीक है, and this nb is the volume correction that we have done, ठीक है। अगर as a whole आप मुझे इसको पूछोगे, ठीक है, as a whole, ठीक है, as a whole this thing will be called as P corrected, as a whole this thing will be called as V corrected, ठीक है। एंड इसमें ये जो A and B हैं, ठीक है, these A and B, इनके ऊपर ध्यान से फोकस करना, these are called as van der Waals parameter of a real gas, ठीक है। they actually depend upon the type of gas, N2 गैस के लिए अलग होगा, O2 गैस के लिए अलग होगा, ठीक है। मैं इनकी डिटेल्स में जाऊंगा, I am going to talk about the details of each A and B, ठीक है। so give me a moment, let me first make you comfortable with this equation first,
ठीक है, आर यू गाइज नाउ कंफर्टेबल विद व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू एज अ रियल गैस इक्वेशन, वॉन डर वॉल इक्वेशन? ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल हैव योर डाउट्स विद इट कि मतलब आपने थियोरेटिकली सोचा तो ठीक है, बट डज इट रियली एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर? एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। ठीक है, ये थियोरेटिकली हमने सोचा कि हाँ मतलब अगर रियल गैस का इक्वेशन लिखना है तो दिस इज हाउ इट शुड वर्क, एंड नाउ वी हैव टू सी इट इफ इट मैचेस विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, हाँ राइट आस्था, ये जो दोनों V हैं, ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वेसल है। ठीक है, V स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम ऑफ वेसल ओनली। ऑलराइट, अभी एक बार A एंड B के ऊपर फोकस करना। ठीक है, A एंड B आर वॉन डर वॉल्स पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोकस करो व्हाट वी विल कॉल एज वॉन डर वॉल पैरामीटर। सो B, ठीक है, सबसे पहले B से स्टार्ट करता हूँ। B इज अ लिटिल सिंपलर। B इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस। ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा? ठीक है, अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस करना है, B का यूनिट क्या रहेगा? ठीक है, NB का यूनिट लीटर के बराबर आना चाहिए, तो B का यूनिट आएगा लीटर पर मोल। ठीक है, दैट इज व्हाट द यूनिट ऑफ B इज। ठीक है, एंड डेफिनेटली इसका कैलकुलेशन इज समथिंग व्हिच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये हम लोगों ने पहले ही करा था, हम लोगों ने डिराइव कर लिया था ऊपर ही। इट इज हाफ इंटू Na इंटू 4/3 इंटू pi इंटू 2r का होल क्यूब। ठीक है, सो इफ यू काइंड ऑफ फर्दर simplify this, ठीक है, if you further simplify this, so this becomes 4 into Na into 4/3 pi r cube। ठीक है, मतलब ये 2r को मैंने खोल दिया तो ये 8r क्यूब हो जाएगा, तो ये 4 into Na into वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नोटिस करना, एज आई सेड it depends on the size of the molecule. Why? Because this r is what is representing the radius of the atom or the size of the atom. तो अगर गैस पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उसका B का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, एज अ सैंपल सेट ऑफ वैल्यूज, ये मैं आपको H2 गैस और मीथेन गैस का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नॉट फॉर यू टू रिमेंबर एनी वैल्यूज। ठीक है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर एनी वैल्यूज, दिस इज जस्ट समथिंग व्हिच आई एम शोइंग और हाईलाइटिंग टू गिव यू अ सेंस कि ये वैल्यूज होते कैसे हैं। ठीक है, काफी छोटा वैल्यू रहेगा B का, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज क्वाइट बिग। ठीक है, ऑलराइट, देन A के ऊपर फोकस करना। A क्या होता है? एज आई सेड, A इज द प्रेशर करेक्शन। ठीक है, प्रेशर करेक्शन फैक्टर विच, और आई शुड से प्रेशर करेक्शन नहीं, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। A इज द प्रेशर करेक्शन फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अभी आप खुद एक बार ट्राई कर सकते हो, टेक अ गेस बाय डायमेंशनल एनालिसिस A का यूनिट क्या होगा? ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस आप लोगों को आता ही है ना, ये आप लोगों ने सीख लिया होगा ना फिजिक्स में। A का यूनिट क्या रहना चाहिए? बताओ शिवांग, तुमने B का करेक्ट दिया था। व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ A? अगर प्रेशर ATM में है, वॉल्यूम लीटर में है और मोल्स मोल में है। प्रेशर ATM में है, वॉल्यूम लीटर में है, मोल्स मोल में है। नहीं हार्दिक, क्या कर रहे हो? यूनिट्स के टर्म्स में दो ना आंसर, यूनिट्स पूछ रहा हूँ मैं A का। हाँ राइट, राइट यश, राइट केदार, हाँ राइट शिवांग, करेक्ट दिया आप लोगों ने। इट विल बी ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना, ये A का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? एज आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो इसका अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन कैसा रहेगा? ठीक है, ठीक है, B का कंपैरिजन कैसा था यश? यहाँ पे था ना, B साइज पे डिपेंड कर रहा है। H2 और N2 में N2 का साइज बड़ा होगा ना, लाइक हाइड्रोजन एज एन एटम इज छोटा, whereas N2 एज एन एटम इज बड़ा और मॉलिक्यूल इज बड़ा, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ B, सॉरी ग्रेटर द साइज, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ B। ठीक है, ऑलराइट, देन A के बारे में सोचो। यहाँ पर A का मैंने बताया, A डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जस्ट अ सेकेंड,
let me A is something which, as I said, depends on the force of attraction. तो अब मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नॉलेज आपको अभी पूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये जो नॉलेज है ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सिखाई जाती है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये सीखते हैं दैट बिकॉज ऑफ द shape and geometry of molecules, ठीक है, there are these definitions that we assign to them, polar and non polar, ठीक है। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने ये वर्ड्स कभी सुने हैं पहले, पोलर वर्सेस नॉन पोलर, आपने सुना है ये पहले, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है कि अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, इसमें नोटिस करना, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूँ। अमोनिया के मॉलिक्यूल में, ठीक है, कैसा रहता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन इज नाइट्रोजन will have a partial negative charge, whereas these hydrogen molecules will have a partial positive charge, ठीक है। तो यहाँ पर what will happen is that there will be an uneven distribution of electron cloud, ठीक है। जो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम पे बताया था, हाँ, पार्शियल नेचर वाला, राइट राइट। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद है तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पोलर नेचर आ जाता है, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल विल बी पोलर नेचर, ठीक है। वेयर एज अगर मैं N2 के बारे में बात करूं, N2 का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, इसमें दोनों नाइट्रोजन एटम्स ही हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा रहेगा, इसमें देयर इज असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन पोलर, ठीक है। हाँ, सो आई थिंक वो बीच में स्क्रीन फ्रीज हो गया था, ठीक है। हाँ हाँ प्रथमेश, मेरा ही नेटवर्क आज थोड़ा अच्छा नहीं है, दैट इज व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग आल्सो, it is my network which is a little painful today. So यहाँ पर this N2, ठीक है, this is non polar in nature, ठीक है। तो ये आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स हर्ष, मतलब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप नोटिस करना पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है, इनके बीच में कैसा होता है, जनरली पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ए का वैल्यू 1.39 है और अमोनिया का वैल्यू ए का 4.17 है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ द वैल्यूज, डोंट ट्राई टू रिमेंबर द वैल्यूज एट ऑल, ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर द वैल्यूज एट ऑल, जस्ट गिविंग यू अ सेंस ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी मैं कि आपको एक स्टेटमेंट याद रखने के लिए बोलूंगा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर सब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ ए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, जैसे H2 N2 Cl2, ये सब नॉन पोलर ही है, ठीक है। तो इनमें कैसा रहता है, साइज बढ़ता है, ठीक है, तो ए का वैल्यू भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, remember this fact that amongst non-polar molecules, greater the size, ठीक है, greater will be the value of A, ठीक है। तो जैसे नोबल गैसेस हो गई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, तो इनमें भी कैसा होगा, साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, बी का वैल्यू भी बढ़ेगा और ए का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। बी का वैल्यू साइज पे डिपेंड करता था, ए का वैल्यू भी साइज पे डिपेंड करेगा, कहां पर, व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन नॉन पोलर केसेस, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया आपको, ठीक है।
नाउ एज अ क्विक प्रैक्टिस एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? सिर्फ यूनिट्स का खेल है इसमें. सी इफ यू आर एबल टू गेट द आंसर टू दिस, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स यू माइट नीड कैलकुलेटर फॉर दिस बिकॉज द वैल्यूज आर नॉट दैट गुड, दे आर जस्ट टू पेनफुल फॉर यू टू डू इट मैनुअली, ठीक है? बट आई जस्ट वांटेड यू टू यूज वंडरवॉल्स इक्वेशन, ठीक है? मैं एक बार क्विकली यहाँ पर रीआइटरेट कर देता हूँ वंडरवॉल इक्वेशन. p प्लस a n square by v square v minus nb is equal to nrt. Okay, this is the van der Waals equation. See if you are able to convert these into proper units and get the answer to pressure. Okay, this will be the last question for the day, so give it a shot. बस एक हर्ष का आंसर है. लेट मी चेक. हर्ष आपका आंसर करेक्ट है क्या? आइडियल गैस लॉ वाला तो हाँ, मतलब इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक 298 केल्विन, तो हाँ 24 पॉइंट समथिंग एटीएम आएगा, ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन का 24 पॉइंट समथिंग रहेगा. van der Waals इक्वेशन का बताओ. हाँ, लेट मी चेक प्रथमेश. हाँ, गुरुदेव और प्रथमेश और हार्दिक, हाँ राइट, तीनों के आंसर्स क्वाइट क्लोज है. हाँ करेक्ट, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले तो यूनिट्स का ध्यान रखना है. तो व्हाट आई वुड रेकमेंड बिफोर पुटिंग देम इनटू द van der Waals इक्वेशन, इनका यूनिट सुधार लो, ठीक है? डोंट पुट देम इन दीज यूनिट्स. किलो पास्कल पर इनटू डीएम रेज टू द पावर ऑफ 6 अपॉन मोल स्क्वायर की जगह इसको आपको, ठीक है, डेसीमीटर तो लीटर के बराबर ही होता है, ठीक है? तो डीएम क्यूब को आप लीटर लिख सकते हो, ठीक है? बट ये जो पास्कल्स हैं या यू कैन से किलो पास्कल है, इसको आप एटीएम में जरूर कन्वर्ट कर लो, ठीक है? एंड बी का भी जो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है, ठीक है, उसको लीटर पर मोल में कन्वर्ट कर लो. तो वंस यू गेट ए एंड बी, ठीक है, by converting them, now you put them into van der Waals equation, ठीक है? You should be able to get the correct answer. हाँ right. A पार्ट का 24.4 समथिंग एटीएम था एंड बी पार्ट का 21.9 या यू कैन से ऑलमोस्ट 22 एटीएम के आसपास आता है. हाँ राइट, ठीक है? वो आप इक्वेशन में पुट करके देखना. थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है, बट हाँ दिस इज टू शो यू हाउ दिस कैलकुलेशन वुड वर्क, ठीक है? ऑलराइट, सो this was van der Waals equation का derivation, I should say. Now how this van der Waals equation is going to explain experimental behavior, ये मैं आपको next class में बताता हूँ, wherein I will talk about validation of van der Waals equation, ठीक है? This is what we are going to talk about in the next class,
ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू वैलिडेट वॉन डेर वाल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमने आज क्रिएट करी है, ठीक है, दिस शुड एक्सप्लेन दिस बिहेवियर दैट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर ये z वर्सेस p का बिहेवियर या फिर ये वाला बिहेवियर, ठीक है, ये इक्वेशन एक्सप्लेन करनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स विद यू एज वेल एज द नोट्स एंड विल कंटिन्यू देन। ठीक है, हाँ अच्छा, कल के डाउट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी चाहिए आप लोगों को। डाउट लेक्चर का पीडीएफ भेज दूं? ठीक है, पीडीएफ भेज देता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग तो भी कर सकता हूँ, बट ठीक है, रिकॉर्डिंग की जगह बेटर है पीडीएफ भेज दूंगा, आपका टाइम वेस्ट ही होगा विद द रिकॉर्डिंग। ठीक है, ऑलराइट, चलो ठीक है, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। हाँ, कुछ कह रहे हो हार्दिक तुम? नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं नहीं 7 तक ही था हार्दिक, मतलब मेरे पास जो टाइम टेबल है। आई डोंट नो, इसके बाद आपका कोई और लेक्चर भी होगा ना? अच्छा, नहीं है, ओके। अरे तो तुम पहले बोलते, फिर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता आज का लेक्चर। तुम लोगों की सैटरडे नाइट खराब करने में तो मुझे बहुत मजा आता। अब तो भाग गए बच्चे। नहीं नहीं, ठीक है यार, मैं नहीं खराब करूंगा तुम्हारी सैटरडे नाइट। तुम लोगों को वैसे ही स्कूल से फुर्सत नहीं मिलती है। ठीक है, चलो टेक केयर गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।